علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام ہے شیخ نور الدین، اور یہ ٹوپیاں سینے کا کام کرتے تھے۔ ٹوپیاں سیتے، دکان پر فروخت کرتے، پھر اس کو سیل کرتے اور اس سے گھر کے معاملات کو چلاتے۔ تربیت جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی گئی ہے، اللہ کرے ہمیں بھی اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنا نصیب ہو جائے۔ علامہ اقبال نے جب علامہ سید میر حسن رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں، آپ کے ادارہ میں بنیادی تعلیم حاصل کی نا، اس کے بعد اقبال گئے تھے داغ دہلوی کے پاس۔ یہ جو شاعری سے شغف رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے، پڑھے لکھے، ان کو پتا ہے داغ دہلوی کس بندے کا نام ہے۔ داغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب علامہ اقبال گئے نا، تو کہا داغ دہلوی مجھے اپنا شاگرد رکھ لو، آپ شاعری میں میرے استاد بن جاؤ۔ تو داغ دہلوی کیا کہتا ہے؟ داغ دہلوی کہتا ہے اقبال عمر میں بے شک تم بچے لگتے ہو، لیکن میں نے تیری نظمیں پڑھی ہیں اقبال، میں نے تیرے اشعار پڑھے ہیں، اللہ جانتا ہے تجھے سکھانے کی نہیں، تجھ سے تو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیول کا بندہ ہے کہ تجھ سے سیکھا جائے۔ یہ علامہ ادھر سے سید میر حسن آپ کے والد کے پاس آ گئے تھے، کہا حضرت میں اپنے ادارے کے لیے فنڈ مانگنے نہیں آیا، میں اپنے ادارے کے لیے کوئی کئی ایکڑ جگہ مانگنے نہیں آیا، میرے مدرسہ میں سینکڑے بچے ایسے کھڑے ہیں جن کو داخلہ ملنے کا انتظار ہے، میں تم سے تمہارا بچہ اقبال مانگنے آیا ہوں۔ کہا شیخ نور الدین اقبال مجھے دے دو۔ شیخ نور الدین کہتے ہیں کیا بات ہے، اقبال کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ کہا میرے مدرسے میں ہزاروں آئے، ہزاروں پڑھ کے چلے گئے، اللہ جانتا ہے اقبال جیسا ذہین بچہ کبھی نہیں آیا، اقبال جیسا ذہین بچہ۔ علامہ اقبال کے والد کہتے ہیں شیخ نور الدین، کہا اس کی تربیت پہ بھی بڑا وقت لگا ہے، بڑی قربانی۔ ایک پروفیسر انور یوسف صاحب تو لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں علامہ اقبال کے والد اپنی شادی کے وقت جہاں جاب کرتے تھے نا، وہ تنخواہ میں ان کی وائف کو یعنی علامہ اقبال کی اماں کو یہ شبہ تھا کہ سود شامل ہو جاتا ہے تنخواہ میں، تو جب اقبال پیدا ہوئے تو اماں نے اپنی چھاتی کا دودھ نہیں پلایا، کہا میں اپنے شوہر کی کمائی سے کھانا کھاتی ہوں اور کہیں وہ سود والے پیسوں کا کھانا میرے اندر جائے اور میرے اندر کا دودھ اقبال کے اندر نہ چلا جائے۔ اتنی تربیت پہ غور کرنا پڑتی ہے، پھر جا کے اقبال بنتا ہے۔ علامہ اقبال کی ماں نے پھر کیا کیسے پالا؟ کہا اس کے والد نے جو حلال کے پیسوں کا اس کو زیور گفٹ کیا تھا نا، وہ اپنا زیور بیچ کر اقبال کی ماں نے ایک بکری خریدی، اس بکری کو اقبال کی ماں اپنے ہاتھوں سے چارہ لا کے ڈالتی اور اس بکری کا دودھ دو کے اقبال کو پلا کے اقبال کو پروان چڑھایا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا سمجھو میں کس بندے کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کدھر کھوئے بیٹھے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ سرمایہ ہے۔ علامہ اقبال نے بنیادی تربیت، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں غور کریے گا، بنیادی تربیت بھی آپ نے اپنے گھر سے سیکھی ہے۔ علامہ اقبال کے والد نے وہ تربیت کی ہے، اللہ اکبر۔ علامہ اقبال خود کہتے ہیں میں چوتھی پانچویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، میں اسکول سے آیا، آپ نے فارسی کا شعر لکھا ہے اس واقعے پر، اس میں آپ نے لفظ استعمال کیا قضائے مبرم۔ قضائے مبرم کہتے ہیں اس تقدیر کو جو بندے کے پیچھے پڑ جائے اور جان لے کے جان چھوڑے۔ کہا میں گھر آیا تو ایک فقیر سائل گھر پہ کھڑا تھا، قضائے مبرم کی طرح وہ ہمارے پیچھے پڑ گیا۔ کہا میں نے کئی بار کہا بابا معاف کرو، چلے جاؤ، وہ پھر کہتا مجھے کچھ دو، میں نے کہا بابا معاف کرو، وہ پھر کہتا ہے مجھے کچھ دو، میں نے کہا بابا معاف کرو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں چونکہ میں بچہ تھا، چوتھی پانچویں کا اسٹوڈنٹ تھا، ابھی تربیت کی بڑی ضرورت تھی۔ کہا مجھے غصہ آ گیا، میں نے ہاتھ میں ایک سوٹی پکڑی ہوئی تھی، میں نے وہ بابے کے کاسے پہ دے ماری۔ اقبال کہتے ہیں جب میں نے بابے کے کاسے پہ سوٹی ماری، کاسا ٹوٹ کے بکھر گیا، زمین پہ آ گیا، جو بابے نے کئی دنوں سے مانگا ہوا تھا نا، اس کا وہ مانگا ہوا سب کچھ زمین پہ گر گیا۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتے ہیں ادھر میرے باپ والد شیخ نور الدین نماز پڑھ رہے تھے، شیخ نور الدین بھاگے آئے، شیخ نور الدین کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہ رہی ہیں، شیخ نور الدین نے آ کے وہ کاسا اٹھایا، اس کو جوڑا، اس کا سامان سارا جو مانگ مانگ کے جمع کیا تھا، جو گر گیا تھا میری سوٹی کی وجہ سے، اقبال کہتے ہیں میرے باپ نے اٹھا کے اس کے کاسے میں رکھا، اور کاسے میں رکھنے کے بعد میرا باپ کچھ پیسے اپنی طرف سے دینے کے باوجود ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، اور میرا باپ رو کے معافی مانگنے لگا۔ وہ کثیر فقیر جب تک گلی کے کونے تک جاتا ہوا ہمیں نظر آتا رہا،
इकबाल कहते हैं मेरा बाप रोता रहा, माफी मांगता रहा, मैं वो चला गया तो मेरे बाप ने घर जाके मुसल्ले पे सर रखा, रोना शुरू कर दिया। इकबाल कहते हैं मैं बाप को उठाता, मैं बाप की मिन्नतें करता, बाप सर न उठा, यहां तक कि मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने वालिद को उठाया, मैंने कहा अब्बा जान गलती हो गई, माफी का तलबगार हूं, उठिए, इतनी भी क्या बात हो गई। कहा जब ये जुमले बोले तो मेरा वालिद खड़ा हो गया। शेख नूरुद्दीन मेरे बाप ने मेरे कंधों से पकड़ा, कहा इकबाल जरा गौर तो कर, तूने भी अल्लाह के सामने जाना है, मैंने भी जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर हुजूर ने मुझसे पूछ लिया शेख नूरुद्दीन अल्लाह ने तुझे बेटा इसलिए दिया था कि तेरा बेटा मेरी उम्मत के फकीरों के कासे तोड़ता फिरे, इसलिए तुझे बेटा दिया था अल्लाह ने। इकबाल कहते हैं वो दिन था मेरी तरबियत के कमाल का दिन था। अल्लामा इकबाल ने कई जगह पे लिखा है नामे तू अज पिदर आबोख्तन। इकबाल कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो आपके सामने पेश होने का जो खौफ है, जो आपकी मोहब्बत है, जो लगन है, वो भी अपने बाप से सीखी है। आपके दीन की मोहब्बत, आपकी मोहब्बत मैंने अपनी माँ से सीखी है। उसके बाद इकबाल हमेशा फिक्रमंद रहे हैं, हमेशा तड़पते रहे हैं ये सोचकर या रसूल अल्लाह मैं आपका सामना कैसे करूंगा। फिर यहीं पर तो वो इकबाल ने लिखा था ना, तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, रोजे माशर उजर हाय मन पजीर, गर तुम्ही बीनी हिसाबम नागुजीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। इकबाल अल्लाह की बारगाह में रो के दुआ करता है, या अल्लाह तू बहुत बड़ा है, तू मालिक है, तू अजीम है, इकबाल तेरा आज एक छोटा सा बंदा है, या अल्लाह इकबाल से मैदान माशर में हिसाब न लेना, इकबाल से हिसाब न लेना। और गर तुम्ही बीनी हिसाबम ना गुजीर, या अल्लाह अगर तूने इकबाल से हिसाब लेने की ठान ही ली है, इकबाल से हिसाब लेना ही है, तो आज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, या अल्लाह अगर इकबाल से हिसाब लेना हो तो इतनी मेहरबानी जरूर करना, निगाहे मुस्तफा के सामने खड़े करके इकबाल से हिसाब न लेना। हाँ, इकबाल को यही तो खौफ रहता है, मैं हुजूर का सामना कैसे करूंगा। सैयद मीर हसन से आप इकबाल के उस्ताद से आपके वालिद शेख नूरुद्दीन कह रहे हैं, कहा ऐ मीर हसन हमने इसकी तरबियत में बड़ी मुश्किलें उठाई हैं, कभी कभी तो हमने भूख काट ली है, इकबाल के पेट में हराम का लुकमा नहीं जाने दिया, कहा हमेशा इसको हलाल खिलाया है, तब जाके अल्लाह ने इसमें करम किया है। और हमने आपके वालिद ने कमाल का जुमला बोला, फरमाया हमने हमेशा इकबाल की परवरिश में, इकबाल के खाने में, इकबाल की पैदाइश के वक्त, इकबाल की जिंदगी में अल्लाह की रिजा को सामने रखा है। हमारे से पास जो आया, जो चला गया, हमने कुछ नहीं सोचा, हमेशा हमने अल्लाह की रिजा को। बल्कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बात हो तो एक बात आप सुन लें, अल्लामा इकबाल ने खुद बात लिखी है। अल्लामा इकबाल कहते हैं अल्लाह की रिजा पे बात हो रही थी ना 1905 में, जब आप इंग्लैंड गए, इंग्लिस्तान गए पढ़ने के लिए, बैरिस्टर की डिग्री हासिल कर ली, वकील बन गए, तो ख्याल आया फलासफर आदमी थे कि फलसफा में पीएचडी कर लो। तो फरमाते मैं जब बाकी और सब वहां में था ना, वकील बनने के बाद मैंने वहां पे वकालत शुरू कर दी, मैं लोगों के केस लड़ा करता था। मैंने कल भी इस बात पे गौर करवाया था आपको, जुमा के नमाजियों को, कि सोचिएगा इस बात पर। इकबाल कहते हैं मैं वहां केस लड़ता था। एक अंग्रेज औरत के बारे में बात करते हैं, वो आ जाती, वो होटल चलाती थी, उसका जो शौहर था वो फौज का मुलाजिम था। इकबाल कहते हैं मैं उसके केस लड़ा करता था, वो बड़ी देर तक आती रही तो शनासाई हो गई। एक मरतबा वो आई तो उसने हैरान कर दिया, अंग्रेज औरत केस लेकर आई तो नकाब पहना हुआ है, बुर्का पहना हुआ है। ये बुर्का पहनना किसकी अलामत है भला? इस्लाम की है। अल्लाह करे सारे बोले बुर्का पहनना किसकी अलामत है? हाँ, मुसलमान की बेटी की अलामत है बुर्का पहनना। तो इकबाल कहते हैं वो पहन के आई, जब वो सामने बैठी तो मैंने सवाल बढ़ा दिया, मैंने कहा आपने बुर्का पहना हुआ है, आपने नकाब डाला हुआ है? इकबाल कहता वो हंसने लगी। उसने कहा जब मैं घर से नकाब पहन के निकली थी ना, ये ख्याल मुझे आया था कि कोई और पूछे ना पूछे, आज इकबाल जरूर पूछेगा। कहा इकबाल जरूर पूछेगा। तो इकबाल ने कहा बताओ। वो कहती है इकबाल ये लंबी दास्तान है, इसको छोड़े, केस की बात करें। अल्लामा इकबाल कहते हैं नहीं नहीं, केस की बात बाद में होगी, अब पहले बताओ ये तुझे बुर्का पहनने की कैसे पड़ी?
तूने नकाब कैसे ओढ़ा? वो कहती है इकबाल तो सुन, हमारे होटल में ना एक बाबा काम करता है। ये बात हो रही है अल्लाह की रजा पे, समझिएगा। अल्लामा इकबाल के वालिद की बात आई तो अल्लामा इकबाल की बात मैं आपको सुना रहा हूं। वो कहती है हमारे होटल में एक बाबा काम करता है और उस बाबे का एक ही जवान बेटा था। इकबाल, वो बाबा हमारे पास शाम के वक्त को आया। वो कहता है मेरा जवान बेटा, एक ही बेटा, बुढ़ापे का सारा फौत हो गया है, कोई मसला ऐसा बना है, मुझे छुट्टियां चाहिए। कहा, हमने बाबे को कुछ पैसे दिए, छुट्टियां दी। मेरे शौहर फौज से छुट्टी आए हुए थे। हम घर में इतने दुखी हुए कि एक बाप का बुढ़ापे का सहारा था, जवानी में चला गया, बाबे की तो कमर टूट जाएगी। कहा, हमने 1-2 दिन के बाद गाड़ी निकाली। हमने कहा कि लंबा सा बाबे ने हमारे पास काम किया है, चलते हैं जाके जरा बाबे के घर में बाबे की हौसला अफजाई करके आते हैं, बाबे को जरा दिलासा दे के आते हैं। इकबाल, हम गए, हमने देखा बाबा अपने घर में बैठा हुआ था। बाबे की भवें झुक चुकी थी, पलके बिल्कुल बिछी हुई थी, चेहरे पे झुर्रियां हैं, बुढ़ापे के आसार हैं। मैंने जाके बाबे को दिलासा देने की कोशिश की। मैंने कहा, बाबा समझ सकती हूँ आपका दुख, तेरी तो कमर टूट गई, तेरी तो घर की खुशियां खत्म हो गई, तू तो उजड़ गया, तू तो बिखर गया। हाँ, वो बातें सुनने के बाद बाबे ने आसमान की तरफ देखा और बाबा एक तवाना लहजे में मुझे कहता है, मुझे लावारिस न समझना, मेरा खुदा है। मुझे लावारिस न समझना, जिनको नींद आ रही है जरा सुभान अल्लाह। मुझे लावारिस न समझना, मेरा अल्लाह है, मैं अपने रब के हौसले पे जिंदगी बसर कर लूंगा। समझो मैं क्या सुना रहा हूं आपको यार, कहां बैठ के मैंने क्या बातें छेड़ दी हैं। मुझे भी अफसोस होता है जिसको नींद आ जाती है, कहें जरा सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात आपके आगे से गुजर रही है, समझने की कोशिश किया करें, बातों को जाया न करें। बहुत बड़ा सबक है इस बात के अंदर, समझिएगा। इकबाल, वो बाबा आसमान की तरफ सर उठा के कहता है, वो कहता है मुझे लावारिस समझ रखा है, मेरा खुदा है, मैं अपने खुदा के हौसले पे जिंदगी बसर कर लूंगा। हमने कहा, बाबे का कोई बड़ा भाई तगड़ा हौसला है। हम वापस आए, बाबे की बातें करते आए। बाबे ने कहा, तुम जाओ, मैं कुछ दिनों के बाद ड्यूटी करने आऊंगा। बाबा आ गया, बाबे ने 1 हफ्ता ड्यूटी की। कहती है, इकबाल, खुदा की करनी, खुदा की हिकमत पता नहीं कैसी थी। 1 हफ्ते के बाद बाबे को फिर पैगाम आ गया कि बाबा, जो तेरी बहू थी, उस बेटे की बीवी शौहर के गम में हार्ट अटैक हुआ, वो भी चली गई दुनिया से। कहा, बाबा वो भी फौत हो गई। बाबा फिर रोता हुआ चला गया गाँव। 2 दिन के बाद, 2 दिन हमारे घर के अंदर खाना भी नहीं बना। हम तड़पते रहे कि बाबे के साथ क्या हो गया है। पहले बेटा चला गया, अब बहू भी चली गई, और वो पोता जो छोटा था उसका क्या बनेगा। ये तो बाबा बूढ़ा है, वो पोता किधर जाएगा, उसकी परवरिश कौन करेगा। हाँ इकबाल, हम 2 दिन के बाद फिर दोनों मियां बीवी रोते हुए बाबे के गांव पहुंचे। अब बाबा उठ नहीं सकता था। बाबे ने सोटी की टेक पे खुद को खड़ा किया, हमसे मिला तो हमने कहा, बाबा अब तो बिखर गया होगा, अब तो तेरी सांसें चलना भी मुश्किल हो चुकी होंगी। बाबा, अब कहां से वो अल्फाज लाए जिनसे तुझसे हौसला मिल जाए, तुझे जिंदगी जीने का सहारा मिल जाए। हाँ, ये बात सुनकर बाबे ने चेहरे के आंसू साफ किए और फिर आसमान की तरफ देख के कहता है, मुझे कोई लावारिस समझ रखा है, मेरा खुदा है, मैं उसी के भरोसे पे जिंदगी बसर कर लूंगा। अल्लाह करे मैं समझा सकूं। वो औरत कहती है, इकबाल, हम वापस तो आ रहे हैं, सोच रहे हैं यार पता नहीं क्या ताकत है इस बाबे के अंदर जो इसको जीने का हौसला दे रही है। क्या हौसला है इस बाबे के अंदर, क्या तगड़ा ईमान वाला बाबा है, पता नहीं क्या परवरिश पाई है इस बाबे ने। वो औरत कहती है, हम घर आ गए। कुछ दिनों के बाद हमने मंदिर देखा, वो नन्ना सा बाबे का जो पोता बच गया था, बाबे की उंगली के साथ वो चलता हुआ आ रहा है। वो आया, बाबे ने कहा, मैं काम करूंगा, आप परेशान ना हो, ये पोता मेरे पास रहेगा। हमने तो 2nd फ्लोर बाबे को दे दिया। हमने कहा, बाबा ऊपर रहो, काम करो, आप रहो, आपका पोता रहे। इकबाल, वो बाबा काम करता, जब शाम को घर आता, अपने बूढ़े हाथों से वो आटा गूंदता, खाना बनाता, और बनाने के बाद वो बड़े प्यार से, कई माओं का प्यार एक लुकमे में मिला के वो अपने पोते के मुंह में डालता। पोता खाता, दादा खिलाता। कुछ दिन गुजरे, बाबे को सारे गम भूल गए, वो घर का माहौल बनने लगा, घर का ऐसा खूबसूरत माहौल बना। इकबाल, हम घर, हमारी औलाद नहीं थी, हम घर के सारे काम छोड़ के
असर के वक्त बाहर आकर बैठ जाते और छत पे बाबे और बाबे के पोते का वो नजारा देखते। कभी ऐसा होता बाबा चूमने लगता, कभी खाना खिलाने लगता, कभी उसके छोटे छोटे कपड़े धोने लगता। इकबाल कभी तो कलेजे में ठंड पड़ जाती, बाबा घोड़ा बन जाता, पोता पुश्त पे बैठ जाता, बाबा उस पोते को घर के सेन में चक्कर लगाता, वो ऊंची ऊंची आवाज में हंसता, बाबे की सांसें और बढ़ जाती। ये प्यार बढ़ने लगा। अब दादे और पोते का एक दूसरे के देखने के बगैर दम घुटने वाला हिसाब हो चुका था। पर इकबाल पता नहीं रब को क्या मंजूर था, हम बैठे हुए थे, हमारे सामने ये मंजर पेश हुआ, हम भी कर कुछ नहीं सके। पोते का उस मंजिल से पांव फिसला, वो हमारे घर के सेन में आके सर के बल गिरा, खून में लथपथ होकर वो भी सांसें तोड़ गया, वो पोता भी फौत हो गया। कहा इकबाल अब बाबा जो पहले सोटी की टेक पे था, बड़ी मुश्किल से वो बाबा जमीन पे नीचे आता है। वो बाबे ने अब वो पोते की लाश जो उसके बेटे की निशानी थी उसको हाथों पे उठाया हुआ है। कहा इकबाल खून में लथपथ है वो बच्चा, और बाबे ने उसको हाथों पे उठाया हुआ है। हमने कहा बाबा अब तो कुछ कहने से कासिर हो गए हैं, अब तो हमारी भी चीखें निकल गई। पक्के दिल का था मेरा शौहर, कहा वो भी रो रहा था। हम बाबे को हौसला देने के लिए आगे बढ़े, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई है, कमर झुकी हुई है, सर झुका हुआ है। जब हमने कहा बाबा अब तो क्या करेगा, अब तो बिखर गया होगा, बाबे ने फिर सर उठाया, झुर्रियों वाले बूढ़े चेहरे से आंसू साफ करके कहता है मुझे लावारिस न समझना, रब्बे काबा की कसम मैं अब भी उसी खुदा के भरोसे जिंदगी बसर करूंगा। अब भी वही रब मुझे जीने का हौसला देगा, अब वही अल्लाह मेरा हौसला बढ़ाएगा, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मेरा ईमान है। अगर मेरा रब राजी है मैं राजी हूं, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावा। जिसका माल था वो ले गया, मैं उसकी रजा पे राजी हूं। कहा इकबाल तू नकाब करने की बात पूछता है, इस बाबे का हौसला था, इसका अल्लाह की रजा में राजी होना था, इसका ईमान इतना तगड़ा था। इकबाल इस बाबे के ईमान ने मजबूर कर दिया, मैं और मेरा शौहर मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने पे मजबूर हो गए हैं। कहा इकबाल ऐसी अल्लाह की रजा में राजी था वो बाबा। वो औरत अंग्रेज कहती है, वो कहती है आपने इकबाल इस बाबे से पूछा बाबा पत्थर पे इतनी मुसीबतें आए तो वो पिघल जाए, पहाड़ पे इतनी मुसीबतें आए तो उसका कलेजा चिर जाए, क्या ताकत है तेरे पास? कहा पहाड़ों जैसा हौसला है तेरे पास। वो कहता है ये हौसला तुम्हारे पास इसलिए नहीं है कि तुमने कलमा नहीं पढ़ा। जो मोमिन कलमा पढ़ता है ना, जो अल्लाह की रजा में राजी रहना सीख लेता है, ये अल्लाह की ताकत है जो ईमान के जरिए वो अपने बंदे को अता फरमाता है और बंदे को जिंदगी जीने का सलीका आ जाता है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, इकबाल की बातें तो बहुत है, दरस कुरान का वक्त बड़ा महदूद है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको जो सुना समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए।